آپ کو بتائیں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں حکومت عمران کے کسی اے ٹی ایم کے پیچھے جانے کی بجائے معاشی صورتحال کی بہتری پر توجہ دے گی، کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، تاہم انصاف ضرور کریں گے۔ شہباز حکومت غریب پر ٹیکس نہیں لگائے گی، ایندھن پر سبسڈی دینے کے لیے حکومت کو نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ہاؤس کارساز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کی ترجیح ملک کے معاشی مسائل سے نمٹنا ہے۔ ہم نے کبھی اے ٹی ایمز کی سیاست نہیں کی، لیکن انصاف ضرور ہوگا۔ آپ حکومت سے فی سبیل اللہ بجلی تو نہیں لے سکتے 650 میگا واٹ جو روز کی لے رہے ہیں، تو اس کا حساب ضرور ہوگا، لیکن خدا نہ خواستہ کسی بھی کمپنی کو، کہ الیکٹرک ہو یا کوئی بھی اور کمپنی ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں اور اے ٹی ایم ہے، تو عمران خان صاحب کے تو اے ٹی ایم بے شمار ہیں، ان کے پیچھے ہم کوئی نہیں جائیں گے۔ ہمارا مقصد جو ہے نا وہ ملک کو بہتر کرنا ہے، عمران خان کو یا اس کے لوگوں کو کوئی بدلہ لینا نہیں ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ چین نے رسک لے کر سی پیک میں سرمایہ کاری کی، سابقہ حکومت نے سی پیک کو نقصان پہنچایا۔ ملکی بقا چینی سرمایہ کاری پر ہے، اس لیے سی پیک پر کام کرنا ضروری ہوگا۔ ایک پاور پلانٹ امریکن گورنمنٹ کا پیسوں سے ہم نہیں لگا سکتے تھے، $500 ملین زیادہ پاکستان کو نہیں دیتے تھے۔ پورے یورپین یونین کی 500 یورو کی لمٹ تھی، 500 ملین یورو کی، وہاں سے بھی ہم ایک پلانٹ سیمنز کا نہیں لگا سکتے تھے۔ جو سیمنز اور جی کے پلانٹس لگائے وہ بھی جا کے چینی کمپنیوں نے ای سی پی وہ کیا، ای پی سی کیا، اور اس کے بعد جو جتنے بھی کول کے پلانٹس لگے، جتنے روڈ رستے بنے، وہ چائنا نے ہمارے اوپر رسک لیا اور قرض دیا ہم کو، اور یا انویسٹمنٹ کری، پاکستان میں سرمایہ کاری کری اور یہاں پہ یہ پلانٹس لگائیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ عمران 1500 ارب گیس اور 2600 ارب بجلی پر سرکولر ڈیبٹ چھوڑ گئے ہیں۔ جتنا نقصان انہوں نے ملک کی معیشت کو پہنچایا اسے پورا کرنے میں وقت لگے گا۔ کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے وفاقی حکومت سے صوبہ سندھ کو اس کے حصے کا پانی دینے کی اپیل کر دی ہے۔ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ سندھ کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، وفاقی حکومت اس معاملے پر نوٹس لے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ صوبے میں اب پاشی کے ساتھ ساتھ پینے کے پانی کی بھی شدید کمی ہے۔ سندھ کا ملک کی زرعی معیشت میں اہم کردار ہے۔ ملک کی معیشت کو پہلے ہی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پانی کی قلت سے زرعی پیداوار اور پھلوں کے باغات متاثر ہو رہے ہیں، کسان اور آبادگار پریشان ہیں، فصلوں پر لاگت کے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ وزیر ماحولیات اسماعیل راہو نے سندھ کی عوام کو مشورہ دیا ہے کہ زیر زمین پانی کم استعمال کریں۔ کہتے ہیں پانی کی مسلسل کمی سے جنوبی سندھ کا زیر زمین آب تو ناقابل استعمال بن چکا ہے۔ اسماعیل راہو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال میں دریائی پانی کم ملنے کی وجہ سے زیر زمین پانی کی پمپنگ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ 4 سالوں میں فصلوں کی پیداواری لاگت میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے متحدہ عرب امارات کی کراچی میں تعینات قونصل جنرل عتیق اور رمیتی کی ملاقات ہوئی، جس میں پاک عرب امارات دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ قونصل جنرل نے صدر مملکت کو عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی مرحوم رکن اسمبلی اقبال محمد علی خان کے گھر میں آمد ہوئی۔ انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ صدر مملکت نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ گرمیوں میں سندھ کا مشہور مشروب تھادل کراچی والوں کو بھی بھا گیا۔ سپر ہائی وے پر لگے تھادل سٹال پر خوش میوہ جات سے تیار کردہ تھادل کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ شہر میں گرمی کا راج ایسے میں مل جائے اگر ٹھنڈا ٹھار تھادل کا گلاس تو کیا ہی بات ہے۔ گرمی کا دشمن تھادل اب کراچی والوں کی بھی پسند بن گیا۔ سندھ کا مشہور مشروب تھادل چکی نما مشین میں پستے، بادام، خشخش، الائچی، کالی مرچ، چار مغز اور دیگر اشیاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ خشک میوہ جات سے تیار کردہ اس پاؤڈر کو ٹھنڈے پانی میں ملایا جاتا ہے، جو کہ نہ صرف ذائقے میں خوشنما ہوتا ہے بلکہ گرمی سے بھی نجات دلاتا ہے۔ اس میں ایک گانی میں ڈالتا ہوں 2 کلو خشخاش ہوتی ہے، آدھا کلو بادام ہوتا ہے، اور 1 شٹانگ الائچی ہوتی ہے، اور آدھی شٹانگ کالی مرچ ہوتی ہے، آدھی شٹانگ زیرہ ہوتا ہے، مڑکا نسری بھی ہوتا ہے، کھوپرا بھی ہوتا ہے۔ یہی مسالے ہوتے ہیں اس میں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دن بدن بڑھتی گرمی سے بچاؤ کے لیے دیسی مشروبات کا استعمال راحت بخشتا ہے۔ گرمی وغیرہ کے لیے بھی جو ہے بہت اچھی چیز ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے اندر سے۔ تو میں بھی اپنے گھروں پہ لے کے جاتا ہوں افطاری میں، آپ لوگ بھی آئے اپنے یہ گھر پہ اپنے افطاری کے سامان کے لیے لے کے جائیں۔ خشک میوہ جات سے تیار کردہ تھادل 40 سے 60 روپے فی گلاس میں دستیاب ہے، جس کے ذائقے کو مزید بہترین بنانے کے لیے اس میں لال شربت بھی ملایا جاتا ہے۔ کیمرامین حسن اقبال کے ہمراہ ربیہ خان، سٹی 21۔ موسم گرما کی ہی ایک اور سوغات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ان دنوں شہر قائد میں ہر سو سبز تربوزوں کی بہار چھائی ہوئی ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس حوالے سے اس رپورٹ میں۔
मीठा, रसीला और फरत बख्श और जिस्म में पानी की कमी से बचाओ। शहर कायद के बाजारों में तरबूज की बहार। शहर में ईरानी, तुर्बत, पंजाब और सिंध का तरबूज दस्तयाब है। पंजाब का तरबूज फी किलो 70 से 80 रुपए, धारीदार तुर्बत और ईरानी तरबूज 90 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। तरबूज लाल और पानी से लबरेज है या नहीं, फल फरोश मखसूस अंदाज में तरबूज को थपथपाते हैं। ये हमारे एक जांच होती है, इसकी इसलिए एक पहचान होती है इंसान, हर काम का हुनर होता है इंसान का। अभी देखिए हमने बता दिया हाथ लगा के भाई ये लाल है, सही है, ऐसे हम बता देंगे ये कच्चा दाना है, इसलिए एक पहचान हो जो कारोबार है हमारा ही है, इसलिए हमारे को जांच है, हम बता देंगे भाई दाना कैसा है कैसा नहीं है, इतनी जांच हमारे को सलाहियत है। शहरी कहते हैं तरबूज रमजान मुबारक में जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने का अहम जरिया है। जो ड्रिप लगाए हुए डॉक्टर बोल रहा है जाओ ड्रिप लगाओ, ड्रिप से ये पैदामंद चीज़ है, ये गुर्दों के लिए भी अच्छा है और जिस्म पानी के लिए भी अच्छा है। तरबूज में तो बड़े पैदे हो रहा है ना, ये फसल है अल्लाह की। बच्चों और बड़ों में बेहद मकबूल तरबूज जिस्मानी तंदुरुस्ती का जामिन भी है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी शहरियों ने तफरीही मकामात पर मजे मजे के खानों पर हाथ साफ किया। मसालेदार बिरयानी, फास्ट फूड और लजीज बारबेक्यू भी खूब एंजॉय किया। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से, जो इस वक्त शाह फैसल बारबेक्यू के मरकज पर मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा कि शहरी चटखारेदार बारबेक्यू के मजे किस तरह से उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, ईद का तीसरा रोज है और हमने देखा कि जहां बिरयानी सेंटर के ऊपर लोगों का रश था, आइसक्रीम पार्लर के ऊपर लोगों का रश था, इसी तरीके से बारबेक्यू के ऊपर भी लोगों का बहुत ज़्यादा रश है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं शाह फैसल कॉलोनी में भट्ट साहब रेस्टोरेंट के ऊपर, और यहाँ भी आप देख सकते हैं बारबेक्यू पे लोगों का काफ़ी रश है। मेरे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बताइएगा कैसा रश है और कितना लोग जो है वो इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। इस साल जो है बानिस्बत 3 सालों के कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा रश दिखने में आ रहा है और काफ़ी लोगों की तादाद आ रही है, निकल रहे हैं घर से बाहर और खाने पीने निकल रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, बहुत रश है हमारे पास भी। अच्छा, थोड़ा सा टेस्ट के हवाले से भी बताइएगा कि जो इस वक्त मार्केटों में ईद के दिनों में तो रश हर जगह ही होता है, लेकिन हमारे पास अगर आम दिनों में भी आप देखेंगे तो आपको रश ही मिलेगा, क्योंकि हम अपने टेस्ट और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल जी, इनका यही कहना है, आम दिनों के अंदर भी इसी तरह का रश होता है, लेकिन ईद के जो मौके होते हैं इन मौके पर रश बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पब्लिक घरों से निकलती है, ज़्यादातर रेस्टोरेंट पे जाती है, खाना खाती है, और जिस तरीके से मैंने बताया कि मुख्तलिफ बिरयानी सेंटर या फिर आइसक्रीम पार्लर के ऊपर रश था, वहीं बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। रात के इस पहर भी फूड स्ट्रीट पर शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, जहां वो चटपटी बिरयानी और चिकन कढ़ाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। नाजिमाबाद की फूड स्ट्रीट पर भी खूब गहमा गहमी है। ताज़ा तरीन अहवाल जान लेते हैं वहां से हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद का तीसरा दिन है और शहर कायद में जो रोशनियां हैं वापस से जगमगा उठी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाजिमाबाद में कायम फूड स्ट्रीट पे और यहाँ पर भी शहरियों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। जैसे कि अगर मेरे कैमरामैन राहिल अगर आपको दिखा सके कैमरे की आंख से कि यहाँ पर जो है मंचले जो हैं यहाँ पर बैठ के बिरयानी से लुफ्तंदोज हो रहे हैं, चटपटी बिरयानी पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो है आवाम जो है कढ़ाई पर भी अपना हाथ साफ कर रही है। यकीनन तौर पर शहर कायद में ईद जो है बहुत जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। शहरी जो हैं शहरियों की आमदोरफ्त जो है यकीनन तौर पे रेस्टोरेंट की जानिब, ढाबों की जानिब गामजन है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा, आज ईद का तीसरा दिन है, तीसरा दिन कैसे एंजॉय कर रहे हैं? तीसरा दिन बहुत अच्छा निकल रहा है हमारा, सब दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। फैमिली के साथ हो गया पहले ईद, दूसरी ईद, अब तीसरी ईद दोस्तों के साथ है। ठीक है जी, यकीनन तौर पे फैमिली के साथ पहला दिन मनाया जाता है और दूसरा दिन जो है और तीसरा दिन जो है जो मंचले हैं वो दोस्तों के साथ बनाते हैं। तो यकीनन तौर पे शहर कायद में जो आवाम है खूब जोशो खरोश के साथ अपने ईद का तीसरा दिन मना रही है। कोई चटपटी बिरयानी पर अपना हाथ साफ कर रहा है तो कोई चिकन कढ़ाई पर अपना हाथ साफ कर रहा है। यकीनन तौर पर शहर कायद की आवाम जो है। बहुत शुक्रिया जुबैर राशिद, हमें अपडेट कर रहे थे। ईद का मौका हो और बिरयानी ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मिसालेदार चटपटी बिरयानी ईद के मौके पर खाने का लाज़मी जुज़ू होती है। इसी हवाले से देखते हैं महमूद रियाज की रिपोर्ट। पर कराची वाले चटपटी मसालेदार बिरयानी के मजे ना लें, भला ये कैसे मुमकिन है? मीठी ईद पर भी कराची के बासी गर्मा गर्म और तीखे मसालों वाली बिरयानी खाकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। ईद का तीसरा दिन है मगर बिरयानी की दुकान पर लोगों का रश मौजूद है। मेहमानों की आमद हो या आप घर से दूर हैं और बिरयानी मिल जाए तो ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। खातून खाना की ईद के मौके पर बावर्ची खाने से भी जान छूट जाती है। मज़ा देती है, हम तो भाई रोज़ाना लेके जाते हैं, अभी भी लिए, हमारे मेहमान आए हैं तो हमने बोला चले उन्हें बिरयानी खिलाएं और मज़ा भी आता है। वैसे खैर ईद के त्यौहार के अलावा बहुत होता है,
क्या समझे, आपकी सोच होगी माशाल्लाह से कि यहाँ जितना चलता है, और ये है कि इनका टेस्ट भी अच्छा होता है, और छोटा सा सेटअप से शुरू हुए थे, आज माशाल्लाह से इनका होनी चाहिए और लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और नॉर्मली अगर आप ईद वाले दिन देखिए, घर पे भी बिरयानी का बहुत एहतमाम किया जाता है। ईद पर दुकानदारों के भी वारे न्यारे हो जाते हैं। बिरयानी का बड़ा पतीला काउंटर पर मौजूद होता है और गर्मा गर्म बिरयानी ऑर्डर के मुताबिक थैलियों में पैक होती रहती है। कराची में हर जगह बिरयानी सेंटर्स मौजूद हैं, जहां कई किस्म की बिरयानी मिलती है। अवाम में ज्यादातर बीफ और चिकन बिरयानी मकबूल है और कराची वाले आम दिन हो या त्योहार, इससे लुफ्तअंदोज होने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ महमूद रियाज, सिटी 21। ईद के तीसरे रोज भी गर्मी में शहरियों को खूब इम्तिहान ले रही है। गर्म मौसम से बचने के लिए शहरियों ने ठंडी दिलबहार लस्सी का सहारा ले लिया है। ईद पर गर्म मौसम ने लिया इम्तिहान तो आवाम हो गए परेशान। गर्मी से बचने के लिए लस्सी की दुकानों का रुख कर लिया और ठंडी ठार दिलबहार लस्सी पीकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। ईद पर गर्मी की वजह से शहर में लस्सी और शेक के इस्तेमाल का रुझान बढ़ गया है। लस्सी पीकर शहरी गर्मी को बाय बाय कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में लस्सी बेहतरीन मशरूब है। लस्सी ठंडी होती है, इस वजह से पी रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है लस्सी पीने से। गर्मी की जो है ना, जो ख़त्म कर देती है लस्सी। तकरीबन गर्मी में ज़्यादातर लस्सी होनी चाहिए जी। लस्सी बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। कराची है, यहाँ पे तो गर्मी बहुत है, लस्सी नहीं पियेंगे तो क्या करेंगे। कराची में गर्मी तो कम करनी है ना, गर्मी कम करने का यही तरीका है, लस्सी पिएं और चिल मारें। प्योर दही की लस्सी बनती है, मशरूबात में तो फ्लेवर होता है, तो ज़्यादा लोग जो है लस्सी पसंद करते हैं। बेसिकली हम भी तो हैं गांव के लोग, तो हम तो ज़्यादा ही लस्सी पसंद करते हैं। ठंडी ठार लस्सी जहां जिस्म को गर्मी से बचाने का बेहतरीन जरिया है, तो वहीं मुनफरिद मशरूब भी है जिसे पीकर हर कोई लुत्फ उठाता है। कैमरामैन शाहजेब के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर रजा बाकिर को गवर्नर स्टेट बैंक के तौर पर अपनी मुद्दत पूरी करने पर खिराज तहसीन पेश किया है। रजा बाकिर के दौर में किए जाने वाले इकदाम पर तफसीलात जारी हैं इस रिपोर्ट में। रजा बाकर ने मई 2019 में गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का चार्ज संभाला। 3 साल मुद्दत मुकम्मल होने पर मरकजी बैंक ने डॉक्टर रजा बाकर को खराज तहसीन पेश किया, उनके इकदामात की तफसीलात जारी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक रजा बाकर के दौर में कोरोना वबा के असरात से बचने के लिए 2073 अरब रुपए का सपोर्ट फंड फराहम किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत का आगाज किया, जिनमें अब तक दुनिया भर से 4 अरब 6 करोड़ डॉलर जमा कराए गए। रजा बाकर के दौर में मेरा घर मेरा पाकिस्तान इसकी मुतारिफ कराई गई, जिसमें अब तक 66 अरब रुपए के कर्ज जारी किए जा चुके हैं। रजा बाकर के दौर में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को तेजी से फरोग मिला। मोबाइल बैंकिंग सर्विस में 7,977 अरब रुपए मालियत के 28 करोड़ 60 लाख ट्रांजैक्शन की गयी। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 70 लाख सार्फिन ने 7,601 अरब रुपए की 11.6 करोड़ ट्रांजैक्शन की। पॉइंट ऑफ सेल मशीन से 10 करोड़ 80 लाख ट्रांजैक्शन के जरिए 559 अरब रुपए का हजम रिकॉर्ड किया गया। मुफ्त अदायगियों के लिए राज सर्विस की सहूलत फराहम की। मार्च 2022 तक ज़री शोबे को 633 अरब रुपए के कर्जे जारी किए गए। रजा बाकर के दौर में इस्लामिक बैंकिंग के डिपॉजिट्स 24.2% इजाफे से 4,211 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। अशरफ खान, सिटी 21। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 2 दहाइयों के बाद शरह सूद में 50 बेस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया है। आलमी मार्केट में खाम तेल 2 रोज में $6.40 महंगा होकर $160.56 फी बैरल तक पहुंच गया है और सोना भी $30 महंगा हो गया है। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट में। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने 2 दहाइयों के बाद शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट का बड़ा इजाफा कर दिया। अमेरिका में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर शरह सूद में इजाफे के बाद खाम तेल और सोना महंगा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज में अमेरिकी खाम तेल 5.3% महंगा हो गया। 2 रोज में अमेरिकी खाम तेल $6.40 महंगा होकर $108.56 फी बैरल पर पहुंच गया। लंदन ब्रांड ऑयल $6 महंगा होकर $110.95 फी बैरल पर पहुंच गया। 2 रोज में सोने की कीमत में 1.71% इजाफा हो गया। सोना $30 महंगा होकर $1,900 फी औंस
माइलस्टोन्स पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल की सप्लाई में कमी के खदशात समेत चीन में कोविड लॉकडाउन के भी असरात देखे जा सकते हैं। कराची टेनिस एसोसिएशन के ज़रिए तमाम 19वें वेस्ट बरी नेशनल सीनियर्स एंड जूनियर्स टेनिस चैंपियनशिप 14 से 20 मई के दरमियान खेली जाएगी। 19वीं वेस्ट बरी नेशनल सीनियर्स एंड जूनियर्स टेनिस चैंपियनशिप 14 से 20 मई के दौरान मॉडर्न क्लब कराची के हार्डवर्क्स में खेली जाएगी। वेस्ट बरी ग्रुप इस हफ्ते तवील कौमी PTF ग्रेड 1 टूर्नामेंट का स्पॉन्सर है। चैंपियनशिप के इवेंट्स में जूनियर्स एंड सिंगल्स और डबल्स बॉयज 14 सिंगल्स और डबल्स के दरमियान खेले जाएंगे।